आज मैं जिस शख्सियत के घर आई हूँ, रासिक इस्माइल। सब आते हैं, तुम क्यों नहीं आई? आपने मुझे बुलाया नहीं। आज से आपका घर है। I just love the art. I've been collecting art talks. And top 3 Pakistani favorite artists. They change every week. Depends on absolutely. आप सबके साथ ब्लंट होते हैं। कौन क्या है? Because मुझे पता है मैं क्या। किसी चीज से अलग करने में जो स्ट्रेंथ ढूंढनी होती है। तुम्हें ये स्ट्रेंथ ना मिले जितनी मुझे मिली थी। क्यों? Was a divorce with my children migrating to Canada. I died the night I left them at the airport. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आप लोग देख रहे हैं स्पीक इजी ऑन 365 न्यूज़। आज मैं जिस शख्सियत के घर आई हूं, एक तो उनकी एस्थेटिक एबिलिटीज़ और उनका एस्थेटिक सेंस बहुत ही कमाल का है। He does multiple things, but essentially they're all based on creating strategies to make something, somebody or a project successful. Success क्या होती है कि आप एक आइडिया को कंसीव करें और उसकी कंप्लीशन तक उसको लेकर जाएं, उसके पूरे प्रोसेस को भी एंजॉय करें और जो एंड गोल है वो भी सिमिलर हो टू व्हाट यू कंसीव्ड। So this personality designs strategies for people, for organizations, चाहे वो food businesses हों, चाहे वो stars हों, actors हों, singers हों, musicians हों, he works with everybody. उन्होंने बहुत सारी projects को शुरू किया और फिर hand over किया to other people because he went on to other ventures. Who am I talking about? I'm talking about PR guru Raसिक Ismail and he's right here. Assalamu alaikum. Aisha, so good to have you. So good to be here. So good to have I love your home. Thank you. मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे? तुम बताओ, सब आते हैं, तुम क्यों नहीं आई? आपने मुझे बुलाया नहीं। आज से आपका घर है ये। क्योंकि हम वैसे हर जगह मिलते रहते हैं। Of course. इतने खूबसूरत लोगों के खूबसूरत घरों में हम मिलते हैं। But thank you. Anytime and every evening you should be here. Let's sit down and chill and chat and इंशाल्लाह। move life forward. Yes. तो अंदर चलें या बाहर ही बात? अंदर बैठते हैं। अंदर कमरे में। बैठते हैं। चलें जी। आ Let's जाओ। go. रासिक के बेडरूम में हम आ गए हैं। Do you allow people here? Yeah. You do. I just love the art. You're an art collector as well, Raसिक? Yes, I am. Yes, I am. मतलब कि कब से आप आर्ट कलेक्ट कर रहे हैं? यार अब तो अपनी उम्र गिनी भी नहीं जाती, इतनी हो गई है। But forever. I've been collecting art talks to me. And top 3 Pakistani favorite artists इस वक्त? यार पता है आयशा, this is a very good question. They change every week. It depends on absolutely. Wow. Because it's not about the artist, it's about what I see, and if that piece, it could be a sculpture, it could be a painting, it could be what, if it's talking to me, and if I'm in that state of mind. और उस वक्त जो फीलिंग evoke हो रही है, जो वो feeling evoke हो रही होती है, then that becomes special to you. So that's what happens. Amazing. Yeah. अच्छा रासिक, you know, I really want to tell you the 2 things that I love about you. Oh. एक तो like I said, रासिक की पॉजिटिव एनर्जी, जब भी आप लोगों से मिलते हैं, पता नहीं आपका दिन कैसा गुजर रहा होगा, आपकी थॉट्स क्या होंगी, क्या हुआ है क्या नहीं, पर जो एनर्जी आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बाहर, जो आप दूसरों को दे रहे होते हैं, वो हमेशा बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत वार्म होती है। That's the one thing, first thing I love about you. The other thing is कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कि आप जो फील करेंगे आप उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे किसी के साथ, ना कि आप सोचें अंदर और आप किसी और से उसके बारे में बात करें। आई रिमेंबर आई मेट यू एट सम रेड कार्पेट, कोई रेड कार्पेट होगा या कोई अवार्ड शो था, एंड मैं बड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, आई वॉज इन फीलिंग वेल, कुछ केओस चल रहा था, एंड आई प्रॉबली डिड नॉट मीट यू विद द सेम energy that I do every time, and you immediately messaged me and you said कि Aisha, I sensed that you were off, what's wrong, you didn't meet me the way you do, तो मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ है। I loved that because that means that आपकी throat chakra जो है, that's open, you communicate
whatever you're thinking, whatever you're feeling, you'll ask the person directly, ना कि आप 10 लोगों में बैठ के कहें कि यार ये हुआ था and this is what I felt. आयशा का तो दिमाग खराब हो गया है, वो बड़ी आदमी हो गई है. I love that. Okay. So I'll tell you both the things. One, I feel so blessed. अल्लाह मियाँ का इतना करम है, हर मिनट जो मेरा गुजरता है और मेरी ज़िंदगी जैसे गुजरी है, मैं 24 घंटे शुक्र करता रहूं तो वो भी पूरा नहीं पड़ेगा. सो उसके अंदर मैं पॉजिटिव ना हूं तो फिर मैं क्या हूं? आई हैव टू बी पॉजिटिव. नंबर 2, जो तुम कह रही हो ना, मेरे फिल्टर कोई नहीं है. मुझे बुरा भी बोलना होता है ना तो मैं फोन उठा के बोल देता हूँ. मेरे फिल्टर्स नहीं है. मैं रियलिटी और रियल रिलेशनशिप्स में बिलीव करता हूँ. आयशा तुम भी ऑथेंटिसिटी, और तुम भी इसी इंडस्ट्री के हो, तुम्हें मालूम है जबकि हमारी इंडस्ट्री बहुत मिलते हैं. फेक हो सकती है. बहुत बहुत बहुत. हाँ. तो मैं उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लूंगा, मैं उससे डील कर लूंगा, लेकिन मुझे पता होगा कि ये रियल रिलेशनशिप नहीं है. थोड़े से लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, आपको पता होता है उनको समझ आ रही है आपकी, आपको उनकी समझ आ रही है. बट रासिका, यू लाइक दैट अक्रॉस द बोर्ड? क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ आपका मिलना जुलना, योर वर्क इज अराउंड बिग स्टार्स, पीपल हु हैव ईगोज एज वेल, तो आप सबके साथ ब्लंट होते हैं? 100 million%, and I've been so fortunate and lucky that people who have जिनकी reputation ये है ना कि वो तो divas हैं और वो difficult लोग हैं, मेरे साथ तो कोई बुरा experience नहीं हुआ है. Because I'm real, वो मेरे साथ real होते हैं. बिल्कुल real होते हैं. एंड आप surface के पीछे जाके देखना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल. मुझे असली इंसान से बात करनी होती है. मुझे पर्सोना से और जो हमारे फसाड होते हैं. यार आयशा, तुम लोग तो बड़े लोग हो, मशहूर लोग हो. नहीं, बहुत. So, लेकिन मैं डॉल्फिन जाऊं तो मेरे पास कोई आ जाता है, आपके साथ तस्वीर खींचनी है. यू नो, ये सब छोटी छोटी बातें दिमाग खराब करती हैं. अगर आपको ये बात समझ आ जाए ना कि ये इंसान एक जर्नी से गुजर रहा है, उसका अभी पीक आया हुआ है, उसको वो रिस्पेक्ट दे दो. उसने मेहनत की है इस लेवल पे आने पे जहां वो समझता है या समझती है कि मैं एटीट्यूड थोड़ा दे सकता. लेकिन जब आप नहीं दे रहे होते और वो आपसे कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत रियल कॉन्वर्सेशंस होती हैं. रासिक इस्माइल वर्क पर्सनालिटी एक अलग है. आयशा उमर की वर्क पर्सनालिटी एक अलग है. बिल्कुल. सोनिया हुसैन, सबक, हुएवर, सबकी वर्क पर्सनालिटी होती है जो हमारी एक फेस होता है हमारा. बिल्कुल. जिस भी हम फील्ड में हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक वर्क फेस होता है, एक वर्क पर्सनालिटी होती है. एक होती है असली. मैं असली से कनेक्ट करता हूँ. सो वर्क को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बिकॉज मेरा इतना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है. बट दिस इज ऑल्सो योर एक्सपर्टीज. दैट्स माय एक्सपर्टीज. कि आपने इमेज बिल्ड करना है. यू गाइड पीपल के इस तरह बिहेव करना है, इस तरह नहीं करना. अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ किसी इवेंट पे जाऊंगा या मैं किसी भी आजकल जो हमारे सारे तुम्हारी टाइप के बच्चे मेहनत करके आगे जा रहे हैं, मैं उनसे 2 स्टेप पीछे चलूंगा. मुझे कोई ईगो इश्यूज नहीं है. मैं उनसे 2 स्टेप पीछे चलूंगा. अगर मुझे उनका बैग उठाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बिजनेस की नेचर ये है, मैं उनका बैग उठाऊंगा. मेरी कोई इसमें मेरी इज्जत कम नहीं हो रही, बढ़ रही है. What is ego? Ego for me is something which is unnatural and that you want to impose to feel better. So आप जो ईगो लोग अपनी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं ना, वो मुझे लग रहा होता है कि मैं उसको थ्रू देख रहा होता हूँ. वो फियर बेस्ड होता है. फियर बेस्ड होता है, इनसिक्योरिटी बेस्ड होता है. Yeah. अगर आप इफ यू आर सिक्योर इन योर स्किन, इफ आई नो आई एम पुटिंग माय फूड ऑन माय टेबल, नोबडी एल्स इज, आई डोंट नीड टू बी थल्ले एनीवन. बिल्कुल. बट एट द सेम टाइम मेरे अगर जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने आपको प्रमोट करना है, आपको सपोर्ट करना है, तो फिर मुझे वो करना है. 2-3 ऐसे लोग इंडस्ट्री में who you have loved to work with, to build their careers with, उनके और उन्होंने आपकी गाइडेंस को फॉलो किया and you are proud of them. बहुत मजे का क्वेश्चन है. एक नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आई नो एक से ज्यादा हूं. नहीं, मैं एक भी बोल सकता हूं, लेकिन बहुत मजे का क्वेश्चन है. इसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स किक इन करते हैं. बिल्कुल. तो मैं शुरू करता हूं सबा कमर से. ठीक है. सबा कमर मुझसे और मेरी 50 लोगों की टीम से 15 मिनट पहले अपने काम पे पहुंचती है. हाउ कैन आई नॉट लव हर? शी मेक्स माई लाइफ इजी. जब आपका काम आसान कोई कर रहा है,
आप इतने प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल। सो सबा और वो जो ऑटो के ऊपर अपनी पर्सनालिटी बदलती है कैरेक्टर्स के साथ। सो जब भी मैंने उनके साथ काम किया, मेरे अल्लाह का शुक्र है मुझे 2-4 दफा मौका I मिला। love her. वेरी क्लोज टू हर, गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग एंड so professional And so talented. so talented She's the best actor. so talented मेरी favorite actress है one सना of the कपूर। top ones बिल्कुल। so अच्छा वो हो गया। हाँ। फिर मेरे आगे बातों में मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। मेरे बच्चे यहाँ नहीं होते, मेरे बच्चे तीनों के तीनों मैंने कनाडा इसके में बारे होते में हैं। बात करनी है। हम करेंगे। कि एक लॉन्ग डिस्टेंस लेकिन रिलेशनशिप मैंने एज अ यहाँ ढूंढ फादर। लिया है बच्चा, मेरा बच्चा यहाँ जो सोनिया। है that's Sonia sir Right. so Sonia is my family है। so Sonia She's like के your साथ- daughter or your sister. डॉटर सिस्टर नहीं है, शायद वो कॉम्बिनेशन ऑफ माय फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, डॉटर, Girlfriend? सिस्टर, एवरीथिंग। इट्स अ Wow. वेरी होलसम रिलेशनशिप जिसके अंदर मैं फादर फिगर हूँ, ऑब्वियसली Of हूँ, course. बट एट द सेम टाइम मैं उससे किसी लेवल की भी कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ एंड आई नो कि मुझे जेन्युइन सच्चे जवाब मिलेंगे। मुझे हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तुम एक्टर नहीं हो, मैं रासिक नहीं हूँ, वी आर टॉकिंग एज पीपल। So सोनिया की इमेज बिल्डिंग आपने की as in you helped her with that maybe PR की? indirectly, professionally, Sonia did Of course you with me. worked with Sonia Yes. professionally. Yeah. तो But PH then I Solutions- am the one who told her कि हमें professionally काम नहीं करना because we are so close and such close Really? friends. Yes. But you still help her. I'm her family. I'll always help her till my last breath. I'll help her. Amazing. She's mine and I'm hers. We are family. Wow. So, अच्छा and males में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। So मेल्स के अंदर अच्छा मैं तुम्हें एक आयशा बात बताऊं, कहीं और से शुरू करूंगा। जब मैं पेंटिंग लेता हूं ना, मैं आर्टिस्ट का नाम पूछता भी नहीं। ठीक है। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न्ड विद कि आर्टिस्ट कौन है, कि कौन क्या है, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या हूं। अच्छा मुझे- you're avoiding my question. नहीं आई विल Rasik. आंसर डायरेक्टली योर क्वेश्चन। Okay, सो okay. मेरे लिए आर्टिस्ट कितना बड़ा है या छोटा है या शुरू हो रहा है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है, मेरी रिलेशनशिप मैटर करती है। सो आई विल गिव यू अ रेंज ऑफ, तुमने मेल आर्टिस्ट का बोला है, easiest to work with and somebody I feel close to is फैसल कुरैशी। ठीक है, सो फैसल को रात 3 बजे कॉल कर दो, कहता है जी भाई, फोन उठाता है जी भाई, और मैं कहता हूँ फैसल Is that why it's easy to work with? क्योंकि वो रात के 3 बजे फोन उठा देता है? नहीं, ऑल्सो अगर मैं और जो लोग सो रहे होते हैं नहीं वो? तो मैं I'll tell you why। हाँ ये भी है, क्यों जाग रहा होता है? नहीं भाई, मैंने कभी ये देखिए नहीं जो लोग पूछा। अपने डिसिप्लिन पे 12 बजे सो गए हैं और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं वो इम्पोर्टेंस देता है मेरी कॉल को, मकसद समझो आइए। Got it. अच्छा सो he अगर respects you like करेक्ट, सही। तो अगर मैं उसको कहूँ ना, इतना ट्रस्ट है उसको हाँ। कि अगर मेरे पास कहीं से 50 मिलियन आ रहा है बजट का, तो मैं उसको दूंगा, और अगर 30,000 आ रहा है तो मैं कहूंगा यार इसमें करके दे दो, ये मुझे करवाना है तुमसे। Trust. और वो एंड ही विल से Trust. रासिक आपने कह दिया हो गया। बट ये दुनिया का निजाम ही ट्रस्ट बेस्ड है 100% मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो वो मैं फैसल कुरैशी का नाम दूंगा। एक नए एक्टर्स के अंदर रिजवान अली जाफरी है, हु इज जिसने अभी दादल सोनिया के साथ ही की है। बिल्कुल। सो रिजवान इज अनदर वन ऑफ दोस एक्टर्स जिसको अब मैं अगर कहूँ कि रिजवान ये मुफ्ते के अंदर तुमने 4 काम करने, वो करेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। फिर जब वो मुझसे कुछ कहेगा ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा काम किया है, शुड आई, सो इट्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट रिलेशनशिप रिलेशनशिप एंड आई लाइक दैट। सो वो ट्रस्ट बिल्ड करना इज वेरी अदनान इंपॉर्टेंट सिद्दीकी, मतलब उसको कैसे मैं भूल सकता हूँ, वो तो कजन, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, कजन टाइप्स है। अच्छा, family connection. बचपन से हम साथ हैं। Okay. सो अदनान बस इज ठीक है, वेरी वेरी क्लोज। हो गए ना, 3 लड़के हो गए, 2 लड़कियां हो गई और अब ब्रेक का टाइम हो गया है। So but there's so much to speak about with you, Yeah, Rasik. We're going to take a short break और वापस आते हैं to Speak Easy. Welcome back to Speak Easy with me, Aisha Umar, on 365 News. We are in conversation with Rasik Ismail. Now I would like to ask you, Rasik, what's happening currently in your life? I do know कि PH Solutions को आपने खुदा हाफिज कर दिया है, जो आपका बेबी था और हमेशा रहेगा. So why? ये क्यों डिसीजन लिया आपने?
आशा मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है that I get a kick out of the process, the journey, not the destination. So वाह, तो मुझे वो जब जर्नी मुझे लगता है ना मेरी कंट्रीब्यूशन इनफ हो गई, then I need to reinvent myself. Otherwise I get bored. So मैंने कोयल कैफे के साथ भी यही किया. 14 years of you created Koel. I started Koel Cafe and I ran Koel Cafe. I was the working partner of Koel Cafe. Absolutely. And then in 14 years, I presented that to my partner, Nurjan Bilgarami and Sara 14 Sara years. Faruqi. 14 years. And then so that was like, okay, I'm giving my shares to you guys. Similarly, 7 years, almost 7 years of PH Solutions, we hit the peak. बिल्कुल, You know, we are माशाअल्लाह। doing the... we सारे did अवार्ड the- शोज कर लिए आपने, सब कर लिया। सबकी PR कर बड़े ली, बड़े कॉर्पोरेट्स कर लिए, PR कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया. so you were done. I was repeating now. Every day I would go to office, I would be doing the same thing again. So for me, that's not exciting. You know, I'm sorry I'm cutting you, Rasik, but I'm facing this challenge with Bulbul. मैं 15 साल से Yeah. And although I am extremely grateful कि you know पूरी दुनिया में उस शो का नाम है, तो लेकिन मैं it's the same thing over and over again. I love it, I love it, I love it, but it's not challenging. तो ये आप अपने आप को किसी चीज़ से अलग करने में जो strength ढूंढनी होती है, वो कैसे आती है? आशम, अल्लाह करे तुम्हें ये स्ट्रेंथ इसलिए ना मिले जिसलिए मुझे मिली थी. क्यों? जब मेरी डिवोर्स हुई, so there was a breakup, and it wasn't just a divorce. It was a divorce with my children migrating to Canada. I died the night I left them at the airport. Oh. I reinvented myself. और And कितने that's where साल the- की सॉरी आपकी मैरिज थी? 21 years. So it was a lifetime. So with that night and the next 2 years, वो रात और उसके बाद के 2 साल, मैं अपने आप को फिर से जोड़कर बना रहा था एक नया इंसान. क्योंकि मैं इंस्टिंक्टिवली पॉजिटिव हूँ, मुझे डिप्रेशन अच्छा नहीं लगता, सो होता तो है, तो मैं अपने आप को निकालने के लिए उस सिचुएशन में से, उस माइंडसेट से मेहनत करके मैं अपने आप को बना रहा था. वो क्या मेंटल थॉट प्रोसेस होता है या प्रैक्टिसेस हैं जो आपने अपनाई टू गेट आउट ऑफ दैट? सिर्फ आप जिस दिन उठे और कहें आज दांत में दर्द नहीं है, आज गला नहीं दुख रहा, आज मुझे कोई बुरी खबर नहीं मिली, उसका शुक्र करें. बिल्कुल. तो जो ब्लेसिंग्स हैं उसका आप उस पे फोकस करें, उस पे फोकस करें. ग्रैटिट्यूड बस. एंड इतनी हमारे पास है. ओह. मेरी अम्मी नीचे बैठी हुई हैं, 92 साल की, माशाल्लाह. माशाल्लाह. कितनों की 92 साल की अम्मियां उनको दुआएं रोज सुबह देती हैं, मुझे देती हैं. सो इतनी चीजें हैं. मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह. मैंने जो है उस पे फोकस किया, जो नहीं है उस पे नहीं. बिल्कुल, क्योंकि फिर वो लैक आपकी जिंदगी में ज्यादा होता जाता है. बिल्कुल. सेम थिंग हैपेंड विद माय लव लाइफ. आई नेवर फाउंड ट्रू लव हाउ डू यू नो? बिकॉज़ आई डिडंट फाइंड. बट आप ट्रू लव को लेबल कैसे कर सकते हैं? ऑल द पीपल यू वर्क विद, यू लव देम. हाँ, लव different, देखिए, हाँ, हाँ. मैं romantic relationship की बात कर रहा हूँ. अग्रीड, Yeah. बट हम ना वो एक बॉक्स में डाल देते हैं लव को. Yeah. लव कैन बी इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. कुछ लोग फोकस करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप वाले लव क्योंकि बाकी है ना, हाँ, जो बाकी है, जो नहीं है आप उस पे. देन अबाउट 4 years बैक, आयशा ये मैं बात बता रहा हूँ और ये पल्लू से बांध लो, क्योंकि ये तुम्हारी भी जिंदगी में काम आएगी और सब लोग जो सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में काम आएगी. बताएं. शायद काम तो आ एक चीज अल्लाह मियाँ ने नहीं दी, उस एक्सटेंट पे जो आपकी रिक्वायरमेंट थी या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उस पे फोकस मत करो. जो 99 चीजें और दी हैं उस पे फोकस. ये आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आप दिस 2 हैप्पी years हो ago. जाते हो, यू आर हैप्पी इंडिविजुअल, एंड फिर वो अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं. बिल्कुल. क्योंकि वो कोई गेट खुल जाता है एनर्जी का, जिसके अंदर आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो वो आपके पीछे भाग. बिकॉज कायनात का निजाम ये है कि वो मटेरियल चीज अट्रैक्ट नहीं होती, वो फीलिंग और ज्यादा अट्रैक्ट बिल्कुल होती है. बिल्कुल. हाँ. और आप वाइब ये दे रहे हैं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो नहीं होगा. आप वाइब आप मैनिफेस्ट कर. मैनिफेस्टेशन का जो उर्दू में क्या कहेंगे मैनिफेस्टेशन को? कि किसी चीज को असलियत देना. हाँ,
कि वो आपकी रियलिटी में आ आप जाए। सोच के उसको कर लें, वो हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो मैनिफेस्टेशन जो एक है वो हमारी जब होती है जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो। आप मैं तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र करता रहूं तो सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का। विदाउट अटैचिंग योरसेल्फ टू हाँ, देम। वो तो चीजें हो गई। लेकिन जब वो जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, उस वक्त मेरा एक जिंदगी का मकसद था, वो ये था कि मेरे बच्चे में बहुत हैंड्स ऑन पेरेंट हूँ। मेरे बच्चे मुझसे इमोशनली फिजिकली तो हैं दूर, इमोशनली मेंटली दूर नहीं होंगे स्पिरिचुअली और स्पिरिचुअली दूर नहीं होंगे। मैंने इतनी मेहनत की है उसके ऊपर, सोच के, बिकॉज वो मेरा एक मकसद था जिंदगी में। बाकी काम मैं कर रहा था जिंदगी गुजारने के लिए, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, फला जो भी। मकसद एक था कि बच्चे मेरे, उनको ये फील ना हो कि उनका बाप उनके साथ उस मुल्क में नहीं रहता जहां वो बड़े हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेरे बच्चे मुझसे इतने क्लोज हैं Wow. कि मैं अगर अगेन 24 घंटे शुक्र करता रहूं अल्लाह का तो वो पूरा ना। आर दे प्राउड ऑफ यू? They are very proud of me, but मुझे लगता है कि मैं कोई चीज नहीं हूँ। I'm very proud of them. अगर तो मेरे बच्चों को But you are proud of them because you have done your job right. No, I'm हाँ, maybe. So they must be proud of and you. And the mother contributed. You know, you know, I can't take that away from her because adult relationships में हमारा जो भी हुआ, लेकिन as a parent सारी उम्र बच्चों को दो लोग पालते हैं अगर जिंदा हो तो, और हम दोनों जिंदा थे और मेरे बच्चे बहुत अच्छे बड़े हुए हैं और उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है और मेरा भी हाथ है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैंने मेहनत की है, मैंने सोच के मेहनत की है। wasn't a typical father जो मैं कहूँ अच्छा बच्चे दूर चले गए चलो पैसे भेज दें। सिर्फ पैसे का रिश्ता नहीं था मेरा। मैं पूरी रात फेस टाइम पे बैठता था कि मेरा बेटा सो जाए, फिर मैं फेस टाइम बंद करता था। सो मेरी बेटियों को जब पहली दफा क्रैम्प्स हुए तो उन्होंने मुझे फोन किया। आई एम दैट क्लोज टू देम। सो आई एम अ पेरेंट हु टेक्स प्राइड इन बीइंग अ पेरेंट। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरे ये प्यारे 3 बच्चे हैं और मेरी जो बड़ी बेटी है ईमाने, जो मेरे दिल का टुकड़ा है, और अगर तुम मुझसे पूछो तो वो अपने आप को बाकी 2 से बेहतर समझती है बिकॉज शी इज अडॉप्टेड। और वो कहती है मैं आपका जेनेटिक पूल नहीं हूँ इसलिए मैं बेहतर हूँ। अच्छा, which brings me back to what are you doing now? I'm independent consultant. ठीक है। इस वक्त मैं अगर प्रोजेक्ट्स बताऊं तो एक हमारी इंटरनेशनल मूवी आ रही है जो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एक इंटरनेशनल हॉलीवुड टाइप मूवी जिसमें हमारा देसी लीड्स हैं। तो सनम, शाह खान, Farhan Tahir, these are the leads of that movie. It's called Martial Artist. Inshallah, very soon to be released. मैं as an independent consultant, I pick and choose The projects you do. जो project मुझे करना है, जिसमें मुझे excitement। हाँ, वही मैं पूछना थी क्राइटेरिया क्या और होता है? different बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ अभी 2-4 आपको जो मैं कर रहा हूँ। एक मैंने अभी जैसे सऊदी टूरिज्म के साथ I was a consultant for that project. You traveled to Saudi Arabia for that? I intend to in future, but अभी तो हमने पाकिस्तान में उनके इवेंट्स कराए। अच्छा। So वो उसके अलावा I am a consultant for South City Hospital, tertiary hospital, one of the best facilities. मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे because I'm learning so much every So day. क्या consultant? So how are you helping them? आप क्या उनके लिए डिजाइन कर रहे मैं समझता हूँ अस्पताल की एग्जांपल दूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे सर्जन्स, हमारे डॉक्टर्स कौन है, बेस्ट इन द पाकिस्तान कौन है, हमने एक पोजीशन किस तरह करना है, हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे कैसे इनको प्रमोट करें और बताएं लोगों को कि हम लोग यहाँ पर हैं। हम जो एक परसेप्शन है कि महंगा है, सस्ता है, फला, उसको कैसे डिसिपेट करें, हमने एक सही मैसेज कैसे आगे भेजना है, हमने किस चीज़ का वीडियो बनाना है, किस चीज़ की तस्वीर लेनी है, किसका इंटरव्यू करना है, ये सारा पूरी स्ट्रैटेजी बना के मैं उनकी टीम से एग्जीक्यूट करवाता हूँ। और मैं होप करता हूँ कि 2-4-6 महीने के अंदर वो इस लेवल पे आ जाए उनको कंसल्टेंट ना चाहिए हो। वो मेरी सक्सेस होगी। Which brings me to the point that जब आपने शुरू किया था रासिक, there was no social media. Correct. तो strategies बिल्कुल फर्क थी। बिल्कुल। Print media, electronic media. Absolutely. Now social media की गेम ही कुछ और है। बिल्कुल। You can target the exact person that you want to target. बिल्कुल। तो strategies जो हैं वो बहुत ज़्यादा focused होंगी। बिल्कुल। So has that helped you? कि अब PR गुरुज की जरूरत नहीं है जब लोग खुद ही टारगेट कर सकते हैं उस जगह को?
अच्छा हम लोग बहुत दफ़ा अज्यूम करते हैं जो काम हमें आता है वो सबको आता है। सो जब मैं इन बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से, सीनियर लोगों से मिलता हूँ, बैठ के बात कर रहा होता हूँ किसी भी इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ अस्पताल की बात नहीं कर रहा, they have zero knowledge, they need that help, they need that support. हाँ, अगर किसी को आता है तो then obviously they don't need any बिल्कुल specialist. गाइडेंस। लेकिन अगर नहीं आपको समझ आ रही है या आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपकी प्रायोरिटी किसी की जान बचाना है, नॉट सोशल मीडिया, देन सोशल मीडिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट हुआ हुआ है अभी, तो आप उसके लिए स्पेशलिस्ट को हायर करें। What is the worst thing about social media right now? I think I'll give you an example. अभी जो ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ हो रहा था ना, हाँ, उसके अंदर I think they should have spoken up professionally, officially. They, as a couple, they should have. If they are not divorced, then they should have come together because there's a बच्ची involved also. There are two families involved also. Yeah. जब आप इतने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इतनी एफर्ट कर लो, ईगो का मसला ना बनाओ, बैठ जाओ को भाई हम साथ हैं, मत गलत खबरें फैलाओ, रादर देन के जाते जाते अंगूठी दिखा दी और कह दिया कि स्टिल मैरिड, व्हाट डज दैट you're right. राइट? सो उसके I think वो trigger हो के- क्रेडिबिलिटी दे दें, वो तो चिढ़ के बेचारे ने किया था, लेकिन अगर आप क्रेडिबिलिटी दे दें कि यार हम किसी भी मैरिड कपल की तरह हैं, हमारे भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मत घुसो हमारे बीच में। We're going to take a short break और वापस आते हैं to Speak Easy. Welcome back to Speak Easy with me, Aisha Umar, on 365 News. We are in conversation with Rasik Ismail. So you will direct or produce a film. I know you will. I have a producer right now sitting with the money and telling me, मुझे आज सुबह मैसेज आया है कि come and tell me what we can do because अच्छा. that gentleman was here from US and I was talking about a concept. टक्साली गेट से बहुत इंस्पायर्ड था। Oh my God, टक्साली गेट देखी? क्या मतलब देखी? Of course देखी। What did you think of it? I loved it. I love, पता है आयशा, honestly मुझे हर पाकिस्तानी मूवी अच्छी लगती है। हम एफर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ अगर उसको शूट डाउन करते रहेंगे ना, तो हम तो आगे नहीं बढ़ने लगे। तो आप किस सब्जेक्ट पे मूवी बनाना चाहें? So it was मूवी नहीं थी, इट वॉज अ वीडियो का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था जिसके अंदर एक गाना मैंने सुना, पुराना गाना है, पंजाबी का गाना है, जिसके अंदर जो थीम थी वो ये थी कि तुमने धोखा दे दिया टाइप का, एंड वो गाना जो बेस्ड है वो एक खूबसूरत रेड लाइट एरिया ही की खातून इंसिनुएट की गई है कि उनका वो इंसान तो है ना, दिल तो दे सकती है ना, हो सकता है, तो वो उसके ऊपर है कि उसकी मोहब्बत, जो कि पता था वो था कि ये मेरे साथ होना तो है, कभी भी नहीं है, लेकिन वो जब चला जाता है तो दैट इमोशन। देखिए मेरा सवाल कुछ और है, अगर फिल्म बनाए तो किस कमर्शियल फिल्म बनाना चाहेंगे या कोई सब्जेक्ट हो? नहीं जी, कमर्शियल। और पाकिस्तान से अगर एक्टर्स लेने हुए, फीमेल एक्टर्स 3 टॉप जिनको आप ऑडिशन करना चाहेंगे या आपकी चाह है कि आप उनको कास्ट करें अपनी फिल्म में, और मेल भी 3, जल्दी कम ऑन। सबा सोनिया एंड सबूर, ठीक है? I find a lot of potential in Sabur. I've never worked with her, but when I see her, when I meet her, when I see her work, I see potential in Sabur. Amazing. So And male? ये अच्छा, मेल के अंदर again depending on the character, I would ideally want somebody from Gen Z also. I don't want Of just कि course. मुझे जो लोग अच्छे लगते थे वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है, Young lot. लेकिन हाँ, so Khakan Shah Nawaz would be one man in that movie because I think him and his following is someone that I would like to talk to. I'm all about young people. So वो होगा। And अगर मुझे एक strong actor चाहिए, यार I love Humayun Saeed and I think he's, and being Humayun, I still think he's underrated as an actor. I think he's an amazing actor. आप जो रोल देते हैं वो करते हैं, जो उसने मेरे पास तुम हो के अंदर एक्सप्रेशंस दे दिए हैं, जो जब उसको कराएगा डायरेक्टर तो वो करेगा। एंड
I would love to have Humayun and Khaqan, like that kind of thing. Wow. So अच्छा, one more question that I wanted to ask you, मैं भूल गई थी कि in this game, PR and ratings and what else? strategy and tactics and is all that. कहा जाता है कि all publicity is good publicity, चाहे वो negative हो या positive हो. Do you agree with that? Relevant रहने के लिए एक स्टार को या सेलिब्रिटी को या पब्लिक फिगर को हर किस्म की पब्लिसिटी से डील करना चाहिए और ओके होना चाहिए. Okay, so there are two levels of that. One is publicity के level के ऊपर. I'll give you a very potent example. Meera ji is always in news, right? So yeah, it's good for अगर projects नहीं भी हैं तो Meera ji is still in news. So she's very successful in staying in कौन news. है उनके वो खुद ही काफी PR है. agency? नाम ही काफी है. खुद ही काफी है ना. नाम ही बिल्कुल, काफी है. बिल्कुल. So Meera ji, but on a personal level, obviously negative sentiment, negative comments, negative PR impacts you. So as an organization also. And As an organization तो बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. बहुत ज़्यादा. Cancel culture जो आ गया है. What do you think of that? I think it is something where what we see in our society anyways, हम लोगों की mob mentality बनती जा रही है. अभी जो एंजेलिन के साथ हुआ है सड़क के ऊपर कि एक बेचारी लड़की काम करके रात को वापस आ क्योंकि रही है, क्योंकि एक और इंसिडेंट उससे एक हफ्ते पहले या 10 दिन आप पहले उसको हुआ dilute था. कर रहे हैं. वो असली था. तो आपने समझा कि ये भी सिमिलर है. करेक्ट. अच्छा, अब वो एक टायर फटा. अब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरी बेटी आ रही है काम करके, मेरी बहन आ रही है, मेरी माँ आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है, दोस्त आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, मेरा टायर फट जाए और मैं जाके हिट करूं किसी रिक्शे को जो कि मेरे बस में नहीं है, और मैं कह रहा हूँ पुलिस को बुलाओ, मैं करता हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कोई नहीं मरा, कोई नहीं जख्मी, उसके बाद आप एक आके फोन छीन लेंगे. ये किसने राइट दिया है आपको? इसका एक word होता है. का मॉब मेंटालिटी बन गई. You take the law into your own hands. करेक्ट. सो But then इसकी फ्लिप साइड पे लाइक मेरी फिल्म टकसाली गेट, उसमें यही था कि जब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा और जब सिस्टम से आपको जस्टिस नहीं मिल रही तो देन यू टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स. सो दैट्स इट्स अ लिटिल ट्रिकी दिस देखो, जो सिचुएशन. तुम कह रही हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी का लेवल वो आ गया है जहाँ पे हमने अपने हाथ में चीजें लेनी शुरू कर दी है बिकॉज हमारा ट्रस्ट फैक्टर कम होता जा रहा है. तो उसको कैसे बदलेंगे? दे शुड गेट रिस्पेक्ट. आवर इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बी करप्ट आल्सो. नॉट बी करप्ट. और वो ये सारी इकोनॉमिक्स के ऊपर बात है. अगर किसी को आप 25,000 रुपए महीना दे रहे हैं, वो पुलिस वाला लेगा पैसे यार, उसके 3 बच्चे घर में बैठे हुए हैं. इट्स अ सिक्लिकल प्रोसेस. हमें आवे का आवा बिगड़ा हुआ है. हमें सब चीजों को. आप मुझे बताएं, जब आप मोटरवे पे जाते हैं वो पुलिस तो नहीं लेती रिश्वत. देखें जब हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं पैसे ज्यादा मिलते हैं उनको. डॉल्फिन लाहौर में तो नहीं ले रही रिश्वत. क्यों पैसे ज्यादा मिल रहे हैं पंजाब पुलिस को? बिकॉज उन्होंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. एंड उसके अंदर किसने create सजा किया? भी पंजाब बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है. पंजाब गवर्नमेंट जो भी प्रोविंशियल वहाँ पे गवर्नमेंट जब ये बने हैं सब लोग, सो उसके अंदर देव क्रिएटेड दिस कि आपकी सजा भी स्ट्रांग है, आपके इकोनॉमिक्स भी ठीक करनी है. उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो फिर आओ में हम देखते हैं. लेकिन जब बेचारों के पास चॉइस नहीं है, सो पनिशमेंट एंड सिस्टम मैटर्स, बट उस सबसे पहले आता है माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी. तो मीडिया प्लेज अ बिग पार्ट इन दैट. मेजर पार्ट इन इट. सो डोंट यू थिंक कि हमारी जो स्टोरी लाइन्स हैं और जो चीज़ें जिनके बारे में बात हो रही है इन ड्रामाज इन फिल्म्स, दे नीड टू बी टॉकिंग अबाउट subliminally these things which change mindsets. एब्सोल्युटली. तो क्या वो हो रहा है? देखो, जब होता है तो अप्रिशिएट होता है. क्यों नहीं हो रहा है इज समथिंग वी नीड टू आस्क द मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री. दोबारा बना था, याद है तुम्हें, जिसमें हदीका कियानी वाज अ ओल्डर वुमन, जिसका मियाँ का इंतकाल हो गया. आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्ले. आई वाज बिलाल अब्बास's फादर. बिलाल पूरी फैमिली की डायनामिक्स दिखाई थी. सो बेसिकली जैसे वो वाला दोबारा जो प्ले था, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट प्ले फ्रॉम रेगुलर प्लेस जिसमें औरतें मारे खा रही हैं. उसमें स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई थी, ओल्डर वुमन, यंगर मैन, व्हाटएवर, राइट, फैमिली डायनामिक्स, एंड इट वाज अ ह्यूज हिट. It was not looked down upon. It was a huge hit.
not only in Pakistan but in India and internationally. तो करो ना यार. लोग देखेंगे. Underestimate your audience. Don't underestimate. Don't the underestimate your audience. audience. हम एक फॉर्मूले पे चल रहे हैं कि बीवी को थप्पड़ मार दो, नन से और सास की लड़ाई लड़वा दो. I think it's time to move forward. Are you very, very active about the Palestinian cause? Have you been speaking about it a lot? Aisha, I think we all have those sessions where we do drawing room talk about Palestine. मेरे केस के अंदर मेरी जो बेटी है वो कनाडा की she lives in Canada. She's 22 years old and she is one of the biggest activists in Canada for the issue. Wow. So पूरी Canadian student body जो है, not Toronto only, पूरी Canadian उन सबको she's one of the leaders over there. She's a genius, माशाल्लाह. She is a 4.0, उसको masters भी 8 months की इजाज़त दे दी है university and all that. But she is the one who brought out the biggest, largest procession in Toronto for the Palestinian cause. Wow. 22 साल की बच्ची है. So she is putting her career and future at stake for the cause because she believes in it. और यहाँ आपने जिन स्टार्स के साथ आप काम करते हैं उनको आपने गाइड किया या उनको आपने कहा कि इसके बारे में बात करो, क्योंकि a lot of, and I know a lot of publicists, a lot of people told actors कि देखो सोच लो, you know, अगर आपकी इतनी सारी एंडोर्समेंट्स हैं, आप इतनी सारी ब्रांड्स और इतनी सारी कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, आपका काम अफेक्ट होगा अगर आपने बात की. And हुआ. So we know And again. जिसने बात की उसका काम अफेक्ट हुआ. जिसने बोला she was shadow banned. Me too. I'm still shadow banned. Yeah, Ushna I'm Shah, still shadow banned. People who have spoken, तुम हो. मैंने इतने ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया because of that. कैंसिल करते हैं. अफेक्ट तो बिल्कुल होता है. But आपकी ओपिनियन क्या थी इसके बारे में? यार मैं बिलीव करता हूँ do what is right. So for it's a personal me, choice. हाँ, for me it's temporary. अगर वो आपको, अगर आप आयशा उमर हैं, वो उष्णा शाह है, वो सोनिया हुसैन है, वो सबा कमर है, काम आएगा, जाएंगे बिल्कुल कहाँ? आएगा. जाएंगे कहाँ? कब ड्रॉ करते हैं कि ये मेरे एथिक्स हैं, ये मेरा काम है? And but do you think कि लोग ड्रॉ करते हैं ये लाइन in our Asha, it's easier for people who are successful to do that. Obviously somebody struggling coming into the industry, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा टफ होता है. वहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए होते हैं. लेकिन when you are comfortable, I think everybody should stick to their belief system and what they believe in, they should speak up about it. बिल्कुल. And not worry about the side effects. बिल्कुल. क्योंकि जो सही है वो सही है. बिल्कुल. और जो गलत है वो गलत है. बिल्कुल. So, but आप encourage करते हैं the people you work with कि आप अपने ethics और अपने principles पे कायम रहें, या आप कभी कभार कहते हैं कि यार देखो ये 90% काम मिस हो जाएगा if you do this? So I'll give you an example with one individual. I had a meeting on exactly this issue. मैंने कहा आप ये बातें नहीं कर सकते कि XYZ किसी नेशन का नाम लेके कि तुम लोगों पे भी बम गिरे और तुम लोग मर जाओ. ये बात सही नहीं. फिर hate speech So I then would give them advice. अपने स्टांस पे स्टिक करो. दूसरे को आप जो स्टैंडर्ड उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, don't go to their standard. Practice what you preach. Practice what you preach. Talk about peace, तो आप hate की बात नहीं. about peace. बिल्कुल. Hate की बात नहीं करो, peace की बात करो. So those are the kind of conversations then I will end up having कि ये है. And फिर हम crisis management की बात करते हैं कि क्योंकि आप सब लोग brands हैं. So अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज होने लगी है तो क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हाउ विल वी टैकल इट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी एंगेजमेंट अभी तक सोशल मीडिया पे 1/4 से भी कम हो चुकी है जस्ट बिकॉज दे स्पोक अबाउट XYZ causes and especially about Palestine, और मेरी भी. So but I guess अल्हम्दुलिल्लाह काम हमें मिल रहा है, मैं बैठी हुई हूँ, ये शो कर रही हूँ, I'm working every day. So I think कि अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आपकी इंटेग्रिटी आप उस पर कायम रहें, तो help comes from everywhere. 100 पे एक दरवाजा बंद होता है, 4 खुलते हैं. बिल्कुल. And as long as you believe in what you are doing and it's the right thing. बिल्कुल 100%. On that note, कोई advice जो आप देना चाहेंगे to the young lot, anything you'd like to say इस कैमरे में, not एक sentence, एक paragraph में जरा बोलें.
यार मेरी एडवाइस ये है कि मैं तो आई सराउंड माई सेल्फ विद द यंगर लॉट। मुझे तो अपनी उम्र वाले बहुत बुढ़े लगते हैं और मैं बैठता ही उन लोगों के साथ हूँ, मैं सीखता ही आप लोगों से हूँ, मैं इवॉल्व भी आप लोगों की वजह से हो रहा हूँ। मेरे बच्चों वाली उम्र के जो लोग हैं वही मेरे दोस्त हैं। आयशा बीइंग एन एग्जांपल। पर आप अपनी विजडम थोड़ी सी शेयर करें ना। यार मेहनत करो, शॉर्टकट्स नहीं है जिंदगी में, देयर आर नो शॉर्टकट्स एंड एनीबडी जिसने भी कोशिश की है ना शॉर्टकट लेकर कहीं पहुंचने की, उसने फिर गलत रास्तों पे जाना पड़ा है और ऐसे रास्तों पे जो आपको बाद में बाइट बैक करते हैं। तो आप मेहनत करें, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। आप मेहनत करें और मूव फॉरवर्ड करें और अपने गोल को रखें और मैनिफेस्ट करें अपने फ्यूचर को। सोचो तुमने कहाँ होना है और कैसे होना है, हो जाएगा, अल्लाह मियां साथ देता है। बिल्कुल, ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू सो मच। वही कि शॉर्टकट्स लेंगे तो करियर या हर चीज़ शॉर्ट लिव्ड होगी, है ना? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you, Aisha. इट वाज अ प्लेजर। आपने अपना Always घर a खोला, pleasure. अभी तो ये आर्ट वर्क मैं एडमायर कर रही हूँ एंड आई विश वी कुड शेयर एवरी लिटिल पीस ऑफ आर्ट विद आवर व्यूअर्स, बट गॉड ब्लेस यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस। मैं पहली दफ़ा आई हूँ लेकिन अब मैं आती रहूँगी। Please, Aisha, I look forward. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वेंचर्स एंड कोशिश करेंगे कि रासिक ऑन बोर्ड आ जाए हमारे शो के लिए। थैंक यू। हम अगली दफ़ा मिलेंगे इन स्पीक ईजी विद मी आयशा उमर ऑन 365 न्यूज़। खुदा हाफिज़।